11th lecture of wireless communication. Today's topic is trunking and grade of service. Okay, so let's begin. Cellular radio systems rely on trunking to accommodate a large number of users in a limited radio spectrum. The concept of trunking allows a large number of users to share the relatively small number of channels in a cell by providing access to each user on demand from a pool of channels available. In a trunked radio system, each user is allocated a channel on a per call basis, and upon termination of the call, the previously occupied channel is immediately returned to the pool of available channels. So आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास अगर 100 चैनल अवेलेबल हैं और and you if you are having 100 user, then you will allot each channel for each user, and whenever that user is free, I mean that user has used that channel, it will return the services to the provider. Okay, and then provider can again assign the channel to the another user. So trunking exploits the statistical behavior of user so that a fixed number of channels or circuits may accommodate a large random users community. ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई एक चैनल एक के लिए फिक्स कर दिया गया है, उसको कोई दूसरा चैनल भी दूसरा यूजर भी यूज कर सकता है फॉर द डिफरेंट टाइम इंस्टेंट. द टेलीफोन कंपनी uses trunking theory to determine the number of telephone circuits that need to be allocated for office buildings with hundreds of telephones, and this same principle is used in designing cellular radio systems. There is a trade-off between the number of available telephone circuits and the likelihood of particular user finding no circuits are available during the peak calling time. Obviously, जब कॉलिंग आवर पीक पे होंगे, जब सारे यूजर को चैनल चाहिए होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टेलीफोन सर्किट है वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हो. तो ये ट्रेड ऑफ हमेशा रहता है कि कितने नंबर ऑफ सर्किट्स अवेलेबल हैं पूरे सिस्टम में और कितने नंबर ऑफ सर्किट्स फ्री हैं जब आप उसको यूज करना चाह रहे हो. ठीक है, और इसी ट्रेड आपको हैंडल करना पड़ता है. As the number of phone lines decreases, it becomes more likely that all circuits will be busy for a particular user. In a trunked mobile radio system, when a particular user requests service and all of the radio channels are already in use, the user is blocked or denied access to the system. ये तो बहुत obvious सी चीज है. आपके पास limited number of channels available हैं, अगर सारे के सारे चैनल्स ऑक्यूपाइड हैं और आप अगर उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो अपने आप ही सिस्टम आपको ब्लॉक कर देगा या आपके रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, डिनाई कर देगा. In some systems, a queue may be used to hold the requesting user until a channel becomes available. ठीक है, इसको भी आप इंटरप्ट से रिलेट करके समझ सकते हैं कि भाई प्रोसेसर जो है एक इंटरप्ट को सर्विस दे रहा है, दूसरा इंटरप्ट जो है वो क्यू में वेट कर रहा है. ये पहले इंटरप्ट की सर्विस खत्म हुई तो दूसरे इंटरप्ट को मैं सर्विस देना स्टार्ट करूं. इसको राउंड रॉबिन अप्रोच भी बोलते हैं. आप लोगों ने शायद राउंड रॉबिन अप्रोच नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट लेट मी टेल यू, राउंड रॉबिन अप्रोच में यही होता है कि भाई एक को आपने दे दिया सर्विस, फिर आपको प्रायोरिटी वाइज दूसरे को देना है, तीसरे को देना है, चौथे को देना है, और ये चलता रहेगा. तो क्यू में ये चीजें जो है वो मेंटेन रहती. ओके, to design trunked radio systems that can handle a specific capacity at a specific grade of service, it is essential to understand trunking theory and queuing theory. Okay, so the fundamentals of trunking theory were developed by Erlangs, a Danish mathematician who in the late 19th century embarked on the study of how large population could be accommodated by a limited number of servers. कैसे एक लार्ज कम्युनिटी को, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को आप अकोमोडेट कर लोगे एक पर्टिकुलर लिमिटेड चैनल के अंदर, उससे रिलेटेड थ्योरी जो है इस अर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने दी. सो टुडे द मेजर ऑफ ट्रैफिक इंटेंसिटी bears his name. So one Erlang represents the amount of traffic intensity carried by a channel that is completely occupied. तो अर्लिंग जो है वो अब यूनिट बन चुका है, और ये अर्लिंग क्या बताता है, 1 कॉल आवर पर आवर और 1 कॉल मिनट पर मिनट. इस तरीके से हम अर्लिंग को डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ रेडियो चैनल दैट इज ऑक्यूपाइड फॉर 30 मिनट्स ड्यूरिंग एन आवर कैरीज 0.5 अर्लिंग्स फॉर ऑफ ट्रैफिक. तो उस ट्रैफिक को डिफाइन करने के लिए, जो कॉल का ट्रैफिक है उसको डिफाइन कर लिए अर्लिंग जो यूनिट है वो यूज होता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ओके,
The grade of service is a measure of the ability of a user to access a trunk system during the busiest hour. तो GOS ये बताता है कि एक यूजर जो है वो कितने अच्छे से आपके ट्रंकिंग सिस्टम को सबसे बिजिएस्ट आवर में यूज कर पा रहा है. The busy hour is based upon customers' demand at the busiest hour during a week, month, or year. The busy hours for cellular radio system typically occur during rush hours between 4 p.m. to 6 p.m. on Thursday और Friday evening. अब ये जो मेजरमेंट है ना, ये जो थर्सडे फ्राइडे इवनिंग का एंड 4 p.m. to 6 p.m. का ये किया है उसने जिसने सिस्टम को उस पर्टिकुलर एरिया में टेस्ट किया होगा. ठीक है, तो ये इंडिया के लिए वेरी कर सकता है, ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा. तो ग्रेड ऑफ सर्विस इज अ बेंचमार्क यूज्ड टू डिफाइन द डिजायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रंक सिस्टम by specifying a desired likelihood of a user obtaining channel access given a specific number of channels available in the system. तो ग्रेड ऑफ सर्विस जो है एक वो बेंचमार्क है जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे कि हमारा जो ट्रंक सिस्टम है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या यूजर को उस समय पे जिस समय पे उसको जरूरत है चैनल एक्सेस करने की, क्या उसको चैनल अवेलेबल हो पा रहा है. तो ये जो बेंचमार्क है इसको डिसाइड करने के लिए ही GOS को बनाया गया है. और ये इट इज नथिंग बट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ अ यूजर टू एक्सेस अ ट्रंक सिस्टम ड्यूरिंग द बिजिएस्ट आवर. सबसे बिजी टाइम पे अगर यूजर को एक्सेस मिल जाता है चैनल का, तब आप बोलेंगे कि आपकी जो ग्रेड ऑफ सर्विस ऑफ एक्सीलेंट. ठीक है. So it is the wireless designer's job to estimate the maximum required capacity and to allocate the proper number of channels in order to meet the GOS. अब जो वायरलेस डिजाइनर है, जो इंजीनियर है, ये उसका काम है कि किस तरीके से आप ये ट्रेड ऑफ मीट करोगे. बिजिएस्ट आवर में चैनल अवेलेबल नहीं है और यूजर को चैनल चाहिए, आप कैसे इस ट्रेड ऑफ को मेंटेन करोगे, मीट करोगे, इन दोनों के बीच में आप कैसे एक कहना चाहिए कॉम्प्रोमाइज एस्टेब्लिश कराओगे. ये डिपेंड करेगा पूरा का पूरा डिजाइनर के ऊपर, आपके इंजीनियर के ऊपर जिसने वो वायरलेस स्टेशन इंस्टॉल किया. So GO is typically given as the likelihood that a call is blocked or the likelihood of a call experiencing a delay greater than a certain queuing time. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया आपको, क्या आपको एक्सपीरियंस हो रहा है डिले का, या आपको ब्लॉकिंग हो रही है आपके कॉल की, है ना, या कॉल ड्रॉप हो जा रहा है ना, या सर्टेन क्यूइंग टाइम से ज्यादा आपका टाइम लग रहा है. तो ये सारी चीजों का मेजरमेंट है वो GOS करता है, या कहना चाहिए स्टैंडर्ड है GOS, यू कैन से. A number of definitions listed in table 2.3 are used in trunking theory to make capacity estimates in trunk system. Where is 2.3, table number 2.3? Can I see table number 2.3 here? Okay. Table number 2.3 it is talking about. So let me have that table. This is table number, okay, so table number 2.3 is further ahead. We will talk about table number 2.3 later. Okay, so moving ahead, the traffic intensity offered by each user is equal to the call request rate multiplied by the holding time. ठीक है. तो ट्रैफिक इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे, जो यूजर है उसने कॉल रिक्वेस्ट जो रेट भेजी है उसको आप होल्डिंग टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ट्रैफिक इंटेंसिटी मिल जाएगी. दैट इज each user generates a traffic intensity of AU or lengths given by AU is the measured you know the unit or the criteria or the parameter, and it is equal to del into H, where H is the average duration of a call and lambda is the average del नहीं sorry lambda है ना, lambda is the average number of call requests per unit time. ठीक है. कितने कॉल रिक्वेस्ट आ रहे हैं एक मिनट के अंदर, और एक यूजर को कितना टाइम लग रहा है अपने कॉल को अटेंड करने के लिए या उसको उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए. इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो मुझे ट्रैफिक की इंटेंसिटी पता चल जाती है कि कितना इंटेंसिफाई है मेरा ट्रैफिक, उसका लोड क्या है, कम है, ज्यादा है. ठीक है. For a system containing U users, U is the again the anonymous users number, and an unspecified number of channels, the total offered traffic intensity A is given by A equals to U into A.
अब अगर आपको एक पूरे, अब ये तो एक यूजर के लिए था, AU इंटू लेमडा एच जो है वो एक यूजर के लिए है। अगर आप ऐसे ही नंबर ऑफ यूजर्स कंसिडर कर लेते हैं और आपको टोटल कैपेसिटी निकालनी है, टोटल इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसको हम A से डिफाइन करेंगे और A इज नथिंग बट U इंटू A, एज सिंपल एज दैट। ये है टेबल नंबर 2.3 और मैं सर्च कर रहा था यहाँ वहां पे। ये है टेबल नंबर 2.3, डेफिनेशन ऑफ कॉमन टर्म्स यूज्ड इन ट्रंकिंग थ्योरी। देख लेते हैं क्या है इसमें। सेटअप टाइम क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू अलोकेट अ ट्रंक्ड रेडियो चैनल टू अ रिक्वेस्टिंग यूजर, उसको सेटअप टाइम बोलेंगे। ब्लॉक्ड कॉल व्हिच कैन नॉट बी कंप्लीटेड एट टाइम ऑफ रिक्वेस्ट ड्यू टू कंजेशन, also referred to as a lost call. Holding time, average duration of a typical call denoted by H. Traffic intensity, measure of channel time utilization, which is the average channel occupancy measured in Erlings. This is a dimensionless quantity and may be used to measure the time utilization of a single or multiple channel denoted by A. Load किसको बोलेंगे? It is the traffic intensity across the entire trunking radio system measured in Erlings. Grade of service, already told you, a measure of congestion which is specified as the probability of a call being blocked for Erlang B, or the probability of a call being delayed beyond a certain amount of time for Erlang C. अब B और C यूजर के नाम हो गए, ठीक है। Request rate, the average number of call requests per unit time denoted by lambda second inverse, ठीक है। Furthermore, in a C channel trunk system, if the traffic is equally distributed among the channels, then the traffic intensity per channel is given by, अब per channel में अगर आपको traffic intensity निकालनी है और number of channel C हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। Note that the offer traffic is not necessarily the traffic which is carried by the trunk system, only that which is offered to the trunk system, ठीक है। When the offered traffic exceeds the maximum capacity of the channel, the carried traffic becomes limited due to limited capacity. ऑब्वियसली आपके चैनल की जितनी कैपेसिटी होगी मैक्सिमम हैंडल करने की, उससे ज्यादा अगर आपका लोड हो गया तो ऑटोमेटिकली वो बाकी सारी चीजें रिजेक्ट हो जाएंगी और वो अपने आप ही कैपेसिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। ये तो इसको समझने की कोई खास जरूरत ही नहीं। आप हैंडल कर सकते हो 100 कॉल्स, लोड आ रहा है 200 कॉल्स का, तो बाकी 100 क्या होंगे? ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होंगे, तो कैपेसिटी अपने आप लिमिटेड होगी। सो द मैक्सिमम पॉसिबल carried traffic is the total number of channels C in Erlings. The AMPS cellular system is designed for a GOS of 2% blocking. This implies that the channel allocations for cell sites are designed so that 2 out of 100 calls will be blocked due to channel occupancy during the busiest hour. इसको आप समझ लीजिए टॉलरेंस लिमिट। तो जो अमेरिकन मोबाइल जो सिस्टम है AMPS उसी से आया हुआ है, ये हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में देखा था। उसकी जो ग्रेड ऑफ सर्विस है वो 2% ब्लॉकिंग की है ना। मतलब आप समझ लीजिए कि हर 100 कॉल्स में 2 कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे, ओके। सो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं उसकी कहना चाहिए क्वालिटी ऑफ सर्विस को, AMPS की क्वालिटी ऑफ सर्विस को, okay. So there are two types of trunk system which are commonly used. The first type offers no queuing for call request. That is, for every user who requests service, it is assumed that no setup time and the user is given immediate access to a channel if one is available. If no channels are available, the requesting user is blocked without access and is free to try again later. This type of trunking is called blocked calls cleared and assumes that calls arrive as determined by a Poisson distribution. अब Poisson distribution जो है वो अगेन मैथमेटिकल फंक्शन है, हम लोग उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ब्लॉक्ड एक्सेस में यही होगा कि भाई अगर अवेलेबल है तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, नहीं है तो आपकी एक्सेस जो है रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फर्दरमोर इट इज अज्यूम्ड दैट देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूजर्स एज वेल एज द फॉलोइंग। फर्स्ट, there are memoryless arrivals of requesting, implying that all users including blocked users may request a channel at any time. And second, the probability of a user occupying a channel is exponentially distributed so that longer calls are less likely to occur as described by an exponential distribution. Third, there are a finite number of channels available in a trunking pool. अब इतने सारे assumptions ले लिए गए,
क्या क्या assumption है भाई कि जो ब्लॉक्ड यूजर हैं या जो भी यूजर रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनल को, ठीक है, वो मेमोरी लेस अराइवल है। मेमोरी लेस अराइवल का ये मतलब है कि भाई आप उसको रिकॉर्ड करके नहीं रख रहे हो कि कौन से यूजर ने कब रिक्वेस्ट की, ठीक है। दूसरा है कि यूजर की ऑक्यूपाइंग चैनल ऑक्यूपाइंग जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, सो दैट लॉन्गर कॉल्स आर लेस लाइकली टू ऑकर एज। अब ऐसा नहीं है कि एक ही यूजर जो है वो घंटों बात करता रहे और दूसरे यूजर को सर्विस ना मिले, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, ठीक, क्योंकि आप यूजर के एक्सेस को कैसे आप इंटरफेयर कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अभी आप देखिए, आप घंटों बात कर लीजिए, आपका जो कहना चाहिए एक्सेस है वो कहीं पे जाता नहीं। तो ये एडवांसमेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन की, जो उस समय पे नहीं थी जब ये ग्रेड ऑफ सर्विस डिफाइन किए गए थे। फाइनाइट नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल हैं, अब तो बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल कर दिए गए। नंबर ऑफ यूजर्स नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स भी बढ़ गए आज की जो हम जनरेशन की बात कर रहे हैं। So this is known as m/m/mq and leads to the derivation of the Erlang's B formula. ठीक है, Erlang's B formula determines the probability that a call is blocked and is a measure of the GOS for a trunk system which provides no queuing for blocked calls. Erlang B का फॉर्मूला जो है अपेंडिंग से में दिया हुआ है, हम लोग जो है ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ये हमारे काम का भी नहीं है, ना आपको इस तक जाना है। आप सिर्फ ट्रंकिंग एंड ग्रेड ऑफ सर्विस में ये बताइए कि ग्रेड ऑफ सर्विस किसको बोलते हैं, ट्रंकिंग सिस्टम क्या होते हैं, कैसे आप ग्रेड ऑफ सर्विस को डिफाइन करते हैं, कैसे उससे क्वालिटी डिफाइन होती है ना। हमने क्यों ट्रंकिंग एंड ग्रेड ऑफ सर्विस को बनाया, इस तरीके का जो बेसिक चीज है वही आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके अलावा ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो एक ये जो एक फॉर्मूला है 2.16 में ये डिराइव करके दिया हुआ है कि जो C है वो नंबर ऑफ चैनल है, ट्रंक चैनल ऑफर्ड बाय द ट्रंक रेडियो सिस्टम, A is the total traffic. While it is possible to model trunk system with finite users, the resulting expression are much more complicated than the Erlang B result, and the added complexity is not warranted for typical trunk system which have users that outnumber available channels by order of magnitude. Furthermore, the Erlang V formula provides a conservative estimate of the GOS as the finite user results always predict a smaller likelihood of blocking. तो सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश की गई है इसमें कि अगर आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ कहना चाहिए फाइनाइट नंबर ऑफ यूजर हैं और तो उनके लिए जो लाइक्लीहुड है ब्लॉकिंग का वो जो है वो कम होगा और उसको प्रेडिक्ट करना इजी हो जाएगा, है ना। और क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ यूजर अगर हैं तो आप इजीली डिटरमाइन भी कर पाओगे कि किस तरीके से आपकी सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर मुझे पहले से ही पता हो कि 20 30 40 जो यूजर्स हैं वो अवेलेबल हैं तो मैं इजीली डिटरमाइन कर सकता हूं अपने ग्रेड ऑफ सर्विस को। तो इसी के लिए ये फॉर्मूला है जो ब्लॉकिंग को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अदरवाइज डू नॉट डू नॉट मच स्टडी अबाउट दिस। अब ये ऑलरेडी एक सिस्टम कैपेसिटी को अर्लिंग बी फॉर्मूला से कैलकुलेट करके बताया गया है कि अगर चैनल नंबर 2 होंगे 0.01 की पीरियड ऑफ सर्विस होगी तो किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर दिस, इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें इग्नोर कीजिए, सिर्फ ऊपर की चीजें आप पढ़ लीजिए। ये 2.4 एक न्यूमेरिकल है, इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। How many users can be supported for 0.5% blocking probability for the following number of trunk channels in a blocked calls cleared system? अगर 1 हो 5 हो 10 हो 20 हो 100 हो, अज्यूम कर लीजिए कि इट जनरेट्स 0.1 अर्लिंग्स ऑफ ट्रैफिक, तो हम लोग बिल्कुल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, उसका फॉर्मूला का यूज करना है और निकाल लेना है, ठीक है। तो टेबल नंबर 2.4 से आपको मिल जाएगा कैपेसिटी का डेफिनेशन, वहां से आप C की वैल्यू आपको दी हुई है, C पहले 1 ले लेना है, ये C की वैल्यूज है ना, A B C D जो दिया हुआ है 1 5 10 20 इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ द C। 1 5 10 20 100 अलग अलग C देख सकते हैं, गिवन में अलग अलग C की वैल्यू ली गई है। AU को 0.1 एज्यूम किया गया है, GOS 0.005 ले लिया गया है, उसको टेबल नंबर 2.4 से ले लिया गया, आप अपने हिसाब से एज्यूम कर लो। टोटल नंबर ऑफ यूजर अगर मुझे चाहिए तो U इक्वल्स टू A अपॉन AU, क्योंकि हमने A को कैसे डिफाइन किया है, AU इंटू U,
तो वहां से आपको यूजर पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आप जो है, हाँ अब यहाँ पे देखो 0.05, तो 0.05 तो हो नहीं सकता, एटलीस्ट वन यूजर तो हो गई, इसलिए वो यू की वैल्यू को 1 ले लिया है ए के केस में। बी के केस में देखिए आपको मिल रहा है 11, देन 39, देन 110। अगर इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रंकिंग एंड ग्रेड ऑफ सर्विस, एंड today's topic is over. Thank you for watching and listening.